हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिनैप्स और सिनैप्स में इम्पल्स कैसे ट्रैवल होता है वो भी हम देखेंगे। और सिनैप्स पे फर्स्ट वी विल सी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट कि सिनैप्स क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, एवरीथिंग विल सी एंड हाउ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टेक प्लेस इन द स्पेस and that is between two neuron, how the conduction take place, that also we'll see. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. So now we'll see the synapse, what is synapse, and one by one you will see which part is called what. You just see here by the diagrammatic form only you will understand. So now see, I am drawing one axon part. The space between two neuron is called synapse, but the now I am drawing what this is the axon part of one neuron. This is the one axon part. This is a bulb-like structure. This is one bulb-like structure I have drawn. There are many bulb-like structure. There would could be how many dendrite could be present there. There would be approximately कितना dendrite present रहता है एक न्यूरॉन में. तो there would be approximately 1000 dendrite could be present. And this is in axon part. When we have drawn axon part, there are many axon, but we have drawn here. We have drawn only one bulb-like structure. So now this is the one part of the neuron, and other part we are drawing. Other part is like that. This is the dendrite part of other neuron. This is dendrite part of other neuron. Now one by one we will understand all the thing. So this is the axon part and this is the dendrite part. Now when the action potential, that is impulse, जब यहाँ आ जाता है तो ये कुछ vesicle like structure, that is called what? Synaptic vesicle. Synaptic vesicle में enroll होता है. ठीक है, these are the vesicle like vesicle like structure. In this neurotransmitters are present. और neurotransmitter में हम दो बताए थे, एक acetylcholine and next is adrenaline or non-adrenaline, and many are there, but two basic things you have to remember. This could only come in the examination and more are there, but so acetylcholine and non-adrenaline, so these neurotransmitters are present. They could be acetylcholine or they could be non-adrenaline and adrenaline. So these impulse, why? First of all, the conduction take place, the synapse is of two types. The area, the conduction of the space between the two neuron is only called the synapse, but there are two types of conduction of impulse. There is chemical synapse and electrical synapse. So two synapses are present there, that is chemical synapse and electrical synapse. Okay, so in this chemical synapse में क्या होता है, तो जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को ये न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए कि कुछ टाइप का केमिकल चाहिए ताकि ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो पाए, क्योंकि ये स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, एज यू नो द चार्ज होता है, अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये प्लस है एंड द आउटसाइड दिस प्लस एंड इनसाइड इज नेगेटिव, सो इफ दिस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब फ्लो तो हो जाएगा, दैट इज चार्जेस फ्लो हो जाएगा. बट ये बहुत दूर, इफ दिस इज प्रेजेंट हेयर एंड नेक्स्ट चार्ज इज प्रेजेंट हेयर, देन हाउ द फ्लो वुड बी टेक प्लेस, फ्लो नहीं हो पाएगा. इसीलिए तो जो यहाँ पे जो बिकॉज द चार्जेस, दैट इज इम्पल्स कुड नॉट ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू नेक्स्ट न्यूरॉन, सो ड्यू टू विच ओनली वन मैकेनिज्म इज देयर बाय द केमिकल से ट्रांसमिट होता है, दैट इज इम्पल्स ट्रांसमिट होता है. और किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू. और वो किस में है, सिनेप्टिक वेसिकल लाइक ऑर्गन, दैट इज वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर. और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या प्रेजेंट है, हो सकता है एसिटाइलकोलिन हो, डिपेंडिंग ऑन द न्यूरॉन की कौन सा न्यूरॉन है, वो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन है और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है. तो ये केमिकल का बात हो गया. टू टाइप ऑफ केमिकल वी हैव सेड, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. बट इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या होता है, द फ्लो इज मोर फास्टर, फ्लो बहुत स्पीड में होता है, और ये जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है. ये स्पेस जो होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन इज वेरी लेस. एंड हाउ मच द स्पेस इज, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली द स्पेस बिटवीन द केमिकल सिनैप्स between the two neuron, in chemical synapse between two neuron, the space is approximately 20 nanometer. ठीक है, 20 nanometer. In electrical synapse it is about 0.2 nanometer. 0.2 nanometer. So it is very less in electrical synapse and it is more in chemical synapse, you can just see. So now we will discuss about this one. So here some
voltage gated calcium channels are present. Voltage gated calcium channels are present, okay, in this region. Now in this region also ion channels are present. This is called voltage gated channel. Voltage gated channels. Which channels? That is calcium channels. तो calcium channels है, calcium में Ca++ होगा, तो calcium channels are present. And here also some ion channels are present. Ion channels are present, okay. And here receptors are also present. Receptors which will, that is neuroreceptors are present, which will मतलब कि receptors का मतलब वो केमिकल को रिकग्नाइज कर लेगा कि कौन सा केमिकल है, कहाँ पे है, तो that will just recept it. न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे, और ये कैल्शियम आयन है, और ये कौन सा चैनल है, तो ये आयन चैनल्स है. दीज आर आयन चैनल्स, ठीक है, आयन चैनल्स. कौन सा आयन चैनल्स? आयन चैनल्स मतलब हो सकता है वो सोडियम चैनल हो, वो हो सकता है सोडियम चैनल्स हो, या फिर पोटासियम चैनल्स हो, या फिर क्लोरीन चैनल्स हो. मैनी आर देयर, तो सोडियम चैनल्स विल टेक सोडियम चैनल्स आर देयर, ओके. नाउ अब ये कंडक्शन होता कैसे, जस्ट हियर. When impulse come here and it is just converted, that impulse is just conduct action potential in form of that impulse information chemicals के form में वो information travel कर चुका है. In chemical के form में वो information travel कर चुका है in a synaptic vesicles. These are synaptic vesicles. And in that neurotransmitter are present. When it would come here, तो होता क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले यहाँ पे जो कैल्शियम प्रेजेंट है इन द स्पेस, वो कैल्शियम गेटेड चैनल सबसे पहले वो खुल जाता है. कैल्शियम गेटेड चैनल खुल जाता है, और वो कैल्शियम गेटेड चैनल से यहाँ से कैल्शियम अंदर चला आता है, यहाँ से कैल्शियम अंदर चला जाता है, ठीक है, कैल्शियम अंदर चला जाता है, ठीक है. अब ये कैल्शियम जाके क्या करता है, यहाँ पे कैल्शियम बाइंड कर जाता है इस स्पेस में. And here these neurotransmitter would come, यहाँ पे neurotransmitter आता है, that is synaptic vesicles come here, and when it would come here, ये यहाँ पे आने के बाद exocytosis, by the process of exocytosis जितना भी chemical है, that is acetylcholine और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ये यहाँ पे that is chemicals यहाँ आ जाता है. और यहाँ पे chemical आने की वजह से क्या होता है, these membrane, this is of course, this is called presynaptic nerve. I haven't told you, this is presynaptic nerve, synaptic nerve, and this is postsynaptic nerve, okay. So प्रीसिनेप्टिक नर्व में क्या होता है, व्हेन एक्सोसाइटोसिस, अगर सारा केमिकल्स रिलीज हो जाता है इन दिस स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन, जब दो न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स केमिकल रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से वो रिलीज हो जाता है. अब जब वो रिलीज हो जाता है तो ये मेम्ब्रेन में, आयन चैनल्स का मेम्ब्रेन में वो दैट इज परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो चेंजेस एंड ये गेट खुल जाता है. कौन सा गेट? आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल्स गेट खुल जाता है, और वो देयर वुड बी इनफ्लो ऑफ द सोडियम एंड एज वी नो, जैसे ही सोडियम इनफ्लो होगा मतलब डीपोलराइजेशन होगा, गारंटीड है. तो डीपोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, सिंपल. सो यहाँ पे सोडियम चैनल खुल जाएगा, सोडियम चैनल जैसे ही खुलेगा सोडियम वुड बी इनफ्लो, सोडियम इनफ्लो हो जाएगा, दैट इज एज वी नो व्हेन देयर इज इनफ्लो ऑफ द सोडियम, डीपोलराइजेशन अगर डीपोलराइजेशन हो जाता है. डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, जब बाहर में पॉजिटिव होता है अंदर में नेगेटिव होता है, दैट आई नो. ये कब का बात बता रहे हैं, ये पोलराइज स्टेट दैट इज -70 मिली वोल्ट का बात बता रहे हैं. एंड इफ़ यू डोंट नो कि ये -70 मिली वोल्ट कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो आई हैव मेड वन वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो ओनली, I think yes, of course, in previous video. That video I will give in the description box. Just check it and see that video, because the conduction of impulse, how the conduction of impulse take place in a non-myelinated neuron, in that only I have discussed in a detailed form. So that video, first see that video, and that video link, उस video का link हम description box में दे देंगे. So just see and you will understand कि -70 millivolt ये बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव कैसे होता है, you will just understand it. So वो video सबसे पहले देख लीजिए. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर नेगेटिव चार्ज. डीपोलराइजेशन जब होता है
तो क्या होता है, ये माइनस बाहर हो जाएगा और पॉजिटिव अंदर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिपोलराइजेशन। ये कब होगा, व्हेन देयर इज इनफ्लो ऑफ द सोडियम। वो सोडियम जब अंदर आ जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज दैट इज अंदर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब क्योंकि ये सोडियम इनफ्लो हुआ तो उसी वक्त ये केमिकल्स, जितना भी केमिकल इसको रिसेप्ट कर लिया, दैट इज इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये रिसेप्टर इसको रिसीव करने के बाद, और बिकॉज द परमिएबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वहाँ उस टाइम सोडियम भी इनफ्लो हो गया और डिपोलराइजेशन अकर हो गया। इसका मतलब पोस्ट सिनेप्टिक नोड दैट इज दिस इन द अदर न्यूरॉन में भी दैट इज एक्शन पोटेंशियल इज रिसीव्ड, एक्शन पोटेंशियल रिसीव हो गया। ठीक है, सो दीज इससे फ्लो होता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, होता क्या है, अगर बार बार ये रिसेप्टर, अगर ये बार बार रिसेप्टर केमिकल को रिसीव करते रहेगा तो होगा क्या, इफ़ जस्ट सी आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल। अगर ये इफ़ बाय मिस्टेक इफ़ आई टचेज हॉट यूटेंसिल्स, अगर गर्म यूटेंसिल्स को अगर हम टच किए तो क्या होगा, हम तुरंत हाथ को पीछे कर लेंगे। वाई, बिकॉज द सिग्नल कम्स कि दैट हैंड वुड बर्न, ये हाथ मेरा चल जाएगा अगर हम उस वहाँ पे यूटेंसिल हॉट यूटेंसिल्स में रखे हुए होंगे तो। बट अगर ये सिग्नल गया, ठीक है, और ये मसल्स ड्यू टू द सिग्नल, द फ्लो ऑफ सिग्नल दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल गया, तो हम हाथ ऐसे किए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि हम हाथ ऐसे करते रहते हैं। सो आई विल नॉट डू माई हैंड लाइक दिस ओनली, बिकॉज एक बार गया तो हाथ यहाँ आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि माई हैंड वुड डू ऑलवेज लाइक दिस ओनली, बिकॉज एक बार न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट रिसीव हो गया, अगर ये बार बार रिसीव होते रहेगा तो क्या होगा, ये दिस एक्शन पोटेंशियल वुड रिसेप्रेट, उसको आइडेंटिफाई करके एंड सिग्नल पहुंचाते रहेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है। सो इसको रोकने के लिए, ताकि माई सिग्नल को एक ही बार हाथ को ऐसे रख करना, ठीक है, एक ही बार ऐसे करना है। जब एक ही बार ऐसे करना है तो वहाँ पे इसको रोकने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को रोकने के लिए क्या होना चाहिए। सो सी हियर, इस मेम्ब्रेन में दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक नोब में, दैट इज इन दिस मेम्ब्रेन ओनली, वन एंजाइम इज देयर दैट इज एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। एसिटाइल कोलाइन, क्योंकि दो केमिकल है, केमिकल का नाम बता देते हैं, केमिकल का। और ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये केमिकल सिनेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल सिनेप्स, ठीक है, बिकॉज केमिकल इज रिलीज। तो केमिकल में दो टाइप का केमिकल है, एसिटाइल कोलाइन एंड एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एसिटाइल कोलाइन को रोकने के लिए, दैट इज यहाँ पे रिसेप्टर्स में, दिस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज प्रेजेंट है। और एड्रेनालिन एंड व्हेन केमिकल, जब केमिकल एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन प्रेजेंट रहता है इस सिनेप्टिक वेसिकल में, अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, इसको रोकने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, वो लिख रहे हैं मोनो अमीन ऑक्सीडेज। तो दीज आर द केमिकल्स that would stop the flow of chemical signal from one neuron to the other neuron। तो इसको रोकने के लिए हमको एक केमिकल चाहिए, that the name is that is acetylcholine esterase, जो कि इस रीजन में प्रेजेंट है। जब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल मिल जाता है, अब उस सिग्नल को रोकने के लिए, क्योंकि बार बार अगर सिग्नल मिलते रहा तो दैट इज द फ्लो ऑफ इम्पल्स वुड बी, वो कंटिन्यू होते रहेगा। बट उसको रोकना भी तो है, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। तो दैट एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज रिलीज होने की वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ये एसिटाइल कोलाइन जो है, एसिटाइल कोलाइन जो केमिकल रिलीज हो रहा है यहाँ से जो आ रहा है एसिटाइल कोलाइन, तो जैसे ही एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज रिलीज होता है, वो क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज वो क्या करता है, ये एसिटाइल कोलाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, दैट इज एसिटाइल प्लस कोलिन, दो केमिकल में ब्रेक कर देता है। और ये दोनों केमिकल जब यहाँ रहता है तो ये वापस, दैट इज एसिटाइल प्लस कोलाइन जो है वो केमिकल, क्योंकि ब्रेक हो चुका है ड्यू टू दी वन एंजाइम दैट इज एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज, ड्यू टू द केमिकल दैट इज एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज, वो जो कि रिलीज हो चुका है, क्योंकि अब हमको सिग्नल नहीं चाहिए। जब सिग्नल नहीं चाहिए तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये वापस यहाँ आ जाता है, ये केमिकल वापस आ जाता है और फिर से सिनेप्टिक वेसिकल बनता है, और सिनेप्टिक वेसिकल में और फिर से ये रेडी है सिग्नल जाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस बराबर चलते, दैट इज ये कंटिन्यूस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, क्योंकि बार बार सिग्नल अगर मिलते रहा तो impulse would travel and my hand, if I want my hand to remove from here, तो एक बार तो रिमूव कर लिया, अब बार बार ये ऐसे
माई हैंड, अगर ये सिग्नल जाते रहा, इन द सेंस जस्ट थिंक कि ये सिग्नल मेरे हाथ से जा रहा है, ठीक है, माई सिग्नल फ्रॉम माई नर्व, माई इम्पल्स इज ट्रैवलिंग फ्रॉम माई हैंड। अगर इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है तो एक बार तो इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव माई हैंड, अगर हम अपना हाथ को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो एक बार तो हटाइए, बिकॉज बट दिस मूवमेंट विच आई एम डूइंग, दिस मूवमेंट इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट जो कि वॉलेंट्री मसल्स, दिस इज एक्टिवेटेड बाय वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जो हम लोग के कंट्रोल में है, बट द मसल्स विच आर नॉट आवर कंट्रोल, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, दैट वी आई थिंक यू नो। बट व्हेन देयर इज नो, जब हम लोग को काम नहीं है, दैट इज इम्पल्स ट्रैवल हो चुका है और उसको रोकना है, तो एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज रिलीज होता है और उसके बाद उसको तोड़ देता है, वो फिर से वापस इसमें चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिनैप्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड. So if you like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon and get all the notification. You will get all the notification from this channel. And next video we will discuss about the reflex arc. कि reflex arc क्या होता है, उसका introduction, उसका types, whatever we will see. So next video we will discuss about the reflex arc.